यू सर, इट्स ग्रेट टू हैव यू। तो हम अपने पहले सेशन को शुरू करते हैं यहाँ से, जिसमें हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस या क्वेरीज जो रहती हैं वो एड्रेस करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल है डॉक्टर राजन अग्रेरी, राजन भैया से, कि हमारे ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स इसमें बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, और ज़्यादातर क्या है कि टीयर 2 या टीयर 3 या नॉन आईआईटीज में रिसर्च का उतना अच्छा माहौल नहीं मिल पाता है। तो मैं एक उनसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहूँगा कि व्हाट एकेडमिक रिसर्च इज ऑल अबाउट, और पेपर पब्लिकेशंस और ये सब क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है, इसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं चाहूँगा आपसे। राजन Okay. भैया, प्लीज गो अहेड। Yes. Okay. So this is for all the participant who is here. Basically, क्या है कि people used to avoid to go in the research field. There are so many reasons. First is what they think कि research के बाद क्या होगा, मतलब वही हम टीचर्स बनेंगे. That is the BTech mentality that टीचर्स या किसी को बनना पसंद नहीं है. Okay, क्योंकि we used to abuse our teachers, our professor during our BTech. So they don't like research field. First thing. The second obvious thing is that most of them after BTech want to join either the government job, PSU, engineering service, UPSC, or private sectors. And another option will be MBA. Okay, but their perspective, उनका जो रिसर्च का जो देखने का नजरिया है, that is totally different. Because ये ऐसा सोचना मेरा भी था जस्ट जब मैंने बीटेक पास आउट किया, क्या यार रिसर्च मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, व्हाट मतलब कि इसका फ्यूचर क्या होगा, देन तो ये सब चीजें थी साथ में. ठीक है, तो मैं अपना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं ज्यादा शेयर करूंगा, बट आई जस्ट कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट व्हाट आई यूज आस्क कि व्हाट इज द एकेडमिक रिसर्च. बेसिकली रिसर्च इज समथिंग is lifelong. It is a lifelong commitment which is neither for paper publishing. आप नहीं पेपर आपको रिसर्च करना है तो you should have to publish a research paper, or nor getting a project, a research project, government project मिलना है. But it is a nothing but learning whatever you are doing and whatever you are understanding and reading and whatever you are doing. The deep understanding of what we are doing, we are seeing around us, we are sensing and touching. That's called research here. Okay, so research ऐसा चीज नहीं है कि जो बहुत टफ होता है आप लोगों के लिए. आप में अगर कुछ नया इन्वॉल्व, इफ यू हैव एनी आइडिया, इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड टू डू समथिंग न्यू, and then you can go for this career. Of course there is you need some motivation to do anything to do. Then let me tell you one thing about the motivation of the research is, पहले क्या था कि you are not getting the stipend as much as other people's get in a job. Like before 2014 PhD वालों की स्कॉलरशिप थी 14,000 16,000. But now if you are joining PhD directly after the BTech or MTech, whatever your situation, you will get the stipend of 34,000 something, and with HRA you will get the 40K. That is the huge amount. It is almost comparable to you will join any private job. So the amount of money is also increases, so that's why you can join you can go for this field also. Okay, and regarding what you have to do when you will involve in research, you have to basically reading the research papers. मतलब जो काफी सारे IEEE या different जर्नल्स होते हैं, आपको उसको पढ़ना होता है. You have to read these things, and if you find, see, research is nothing just आप न्यूटन की तरह कुछ आपको डिस्कवर करना है या फिर मैडम क्यूरी की तरह कुछ डिस्कवर करना है. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत
कुछ एकदम बढ़िया करना, आइंस्टीन बनना है. Research is something which is already happened. You have to reproduce this. That's called it is research. Search को दोबारा करो. That is called it research. So it is not that much tough. Okay. So what we basically do in our research is the paper which is already published. We just पहले हम उसको पढ़ते हैं. We read those paper, and after that, from reading those so many papers, we get the idea about the अभी करंट में क्या टॉपिक चल रहा है. आप उस टॉपिक को फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आप उसको फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो या सिमुलेशन करते हो, एनालिसिस करते हो. देन आप पेपर लिखते हो with the help of your guide, and you publish the paper, and of course आपका राजन भैया, am I audible? Yes, yes. हाँ, आपने काफी सारी चीजें इसमें करी, मतलब कवर कर दी, मॉनेटरी एस्पेक्ट. और अगर मैं शॉर्ट में अगर आपकी बात रखना चाहूँ तो रिसर्च इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग दी ऑलरेडी डन वर्क एंड मेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन इट. अगर मैं कंसाइज फॉर्म में बोलूँ इसको कि माइन्यूट अगर हम कुछ भी उसमें इंक्रीमेंट कर सकें. अभी फर्दर मतलब क्वेश्चंस में हम और कवर करेंगे, थोड़ा सा हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है. ओके ओके ओके. तो हाँ, तो और मींस एक रिक्वेस्ट भी है बाकी स्पीकर से कि थोड़ा सा कंसाइज रखें, क्योंकि वी नीड टू कंप्लीट द वेबिनार. तो कई सारी क्वेरीज भी हैं हमारे पास. तो मूविंग ऑन हमारे नेक्स्ट स्पीकर पे, शिवम अग्रवाल सर. शिवम अग्रवाल सर से एक बहुत ही जनरल या क्वेश्चन है जो हर कोई जानना चाहेगा. उनका बीटेक के बाद बार्क में सिलेक्शन हुआ था, तो बार्क का उनका जो है एडमिशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि क्या प्रोसीजर था उसका, और इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, वो हम चाहेंगे कि वो साझा करें हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ. ओके, थैंक्स आयुष. बीआरसी का जैसा कि एक्सपीरियंस है, बीआरसी में पहले तो दो फॉर्म्स रहती हैं, उनके थ्रू आप बीआरसी में ज्वाइन हो सकते हो. पहला तो रिटन टेस्ट, देन आफ्टर रिटन टेस्ट देयर इज अ इंटरव्यू. So with written test there is one more area, like you can go for interview with the help of written test or gate score. So means mine gate score was very bad, means you can say it's like I was failed in a gate, means that a different story I will share you when if the speakers or moderator will allow me. Then in BARC, and BARC written test is basically it's about the test of your fastness, means it is not checking your depth in any field. Like in a gate we have 3 hours of time and some questions. So gate exam में हमारी depth knowledge की check होती है, but BRC written exam में आपकी width check होगी कि आपको कितना ज़्यादा width की knowledge है वहाँ पे आपका, और आप कितना time management. These two are the key skills for the BRC written test: your width, knowledge width, as well as time management. And after you cleared the written exam, then there comes an interview. In interview, अभी इस interview phase में आपका पूरा जो depth है किसी भी issue की, वो depth check होगी. It's like जैसे other companies का interview रहता है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो एक पैटर्न रट के जाते हैं और बस वहीं पे पेस्ट कर देते हैं, कट पेस्ट कर देते हैं सामने. बट यहाँ पे आपको पूरा टाइम मिलता है कि मीन्स कोई हरी नहीं होती है. ऑलमोस्ट आप समझ लो 45 मिनट्स एवरी कैंडिडेट को मिलता है एक्सप्लेन करने के लिए. और जो इंटरव्यू पैनल होता है वो इतना सपोर्टिव होता है कि दे आर ऑलवेज गिविंग यू द हिंट्स, कि इफ यू अगर कहीं पे आप स्टक होते हो तो वो बताएंगे कि आपको मतलब हिंट्स मिलेंगे, पर उन हिंट्स को पकड़ के आप आगे जा सकते हो. एंड आई विल टेल अबाउट माय एक्सपीरियंस कि मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से. तो उसमें बताया था मैंने ट्रांजिस्टर, डायोड एंड दिस. तो वहाँ पे इंटरव्यू की शुरुआत की थी उन्होंने डायोड के सिंबल से, कि डायोड का सिंबल क्या होता है. एंड देन एकदम बेसिक से उठा के देन आप जितना आंसर देते जाओगे उतना डेप्थ में वो लेते चले जाएंगे. एंड देन फाइनली
कई जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को मींस बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स बोलने होते हैं, तो उन 5 सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो एंड देन उसकी डीप में वो जाते जाएंगे। मींस इट्स लाइक मींस आपके सामने 5 साइंटिस्ट बैठे होते हैं, तो बट यू विल नॉट फील कि दे आर साइंटिस्ट, मींस वो इतना ज्यादा इजी कर देते हैं माहौल को कि यू विल एंजॉय द मींस वो जो माहौल होगा वहाँ का। सो दैट वाज माय जर्नी इन कंसाइज मैनर। बिल्कुल बिल्कुल सर। मूविंग ऑन, मैं मेरा अगला जो सवाल है वो मोहिनी मैम से है। तो किसी भी इंडस्ट्री में जो पहला ब्रेक मिलना होता है वो काफ़ी एंग्जाइटी होती है लोगों के अंदर कि कैसे होगा। तो मैं मोहिनी मैम से उनकी जर्नी जानना चाहूँगा कि उनको पहला ब्रेक कैसे मिला और वहाँ पे मतलब उनको कैसा माहौल मिला। मोहिनी मैम, क्या मैं क्वेश्चन क्लियर कर पाया हूँ? हेलो हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, तो तो पहला ब्रेक पोस्ट बीटेक मैम हम फॉर्चुनेटली, आपकी जर्नी जानना चाहेंगे। हाँ हाँ, प्लीज गो अहेड। हेलो हाँ मैम, हेलो। प्लीज गो अहेड। हाँ, हाँ, यू आर ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। तो फॉर्चुनेटली ये था कि टीसीएस में हमारा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था एंड दैट वाज इन सितंबर ओनली। काफ़ी जल्दी हो गया था, अगस्त सितंबर ऑफ द फाइनल ईयर। तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ एंड कि उस टाइम पे टीसीएस आई थी एंड हमारे बैच में काफ़ी अच्छे नंबर में रिक्रूटमेंट हुआ था। उसके बाद मुझे काफ़ी एक सेंस ऑफ सिक्योरमेंट हो गया कि चलो एक जगह तो हो गया है। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट as what my family wanted at that point of time. While I would say I did not want to go for GATE क्योंकि मैं उतना टेक्निकल में नहीं फॉलो करना चाह रही थी। आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग कुछ इन अदर डायरेक्शन, बट यस फॉर फैमिली आई ट्राइड। और उसके बाद मैंने लाइक थर्ड ईयर में भी थोड़ा पढ़ा था गेट के लिए। तो फॉर पीपल गेट के तो बहुत अच्छे रैंकर्स हैं, दे कैन टेल यू मोर, बट यस फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर काफ़ी अच्छी प्रिपरेशंस हो गई थी। एंड देन वी गॉट टू नो एंड ऑफ द ईयर मीडिया टेक इज ऑल्सो कमिंग टू कॉलेज। तो फॉर दैट हमें पता था हमारे सीनियर्स के थ्रू व्हाट काइंड ऑफ कंपनी मीडिया टेक इज। तो उसमें वायरलेस कम्युनिकेशन आपका जो फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So we mostly all the students were putting focus on wireless communication. और उसके बेसिक्स हम प्रैक्टिकल और जितने भी चीज़ें हैं वो उसकी प्रिपरेशन करने लगे। तो एट दैट टाइम हमें ज्वाइनिंग तो नहीं मिली थी बिकॉज दे हैड वेरी लिमिटेड वैकेंसी। तो फॉर आफ्टर दैट आई जॉइन टीसीएस इन सितंबर 2012। वहाँ पे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग रही एंड जैसा कि सभी जानते हैं टीसीएस हो इन्फोसिस हो, व्हेन यू जॉइन एन एमएनसी द बेस्ट पार्ट इज टू गेट ट्रेन फ्रॉम देयर। वो जो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, यू लर्न अ लॉट अबाउट कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड हाउ टू वर्क एंड हाउ टू बी देयर। So I learned from there and we had a batch, very mixed batch, जिसमें आधे मलयाली थे, कुछ आईटी लखनऊ के लोग थे। So there was a mixed batch and in my group of 6, they make a group of 6 people to work on one assignment. So I was the only person from UP and everyone, one was Rajasthani and the other was Malayali. So it was very good learning from there only. एंड वहाँ पे मतलब CS प्लस नॉन CS का कुछ ऐसा चलता था बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल हैव टू फेस दिस कि अभी कोडिंग में आपको आगे करना है काम, तो काफ़ी चलता था। तो मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी बीइंग ईसी पर्सन इलेक्ट्रॉनिक्स का होने के। तो एंड ऑफ द बैच मेरे बैच में मेरे ग्रुप में जो एक मलयाली बंदा था ही वाज फ्रॉम CS। सो जिस दिन हमारा कोर्स खत्म हो गया एंड वी वर इन ऑडी और टीसीएस में
अवार्ड्स बटने थे. तो ऐसा कुछ हुआ कि दैट गाय हिज नेम इज नाजी एंड आई वाज सेइंग नाजी यू आर गोइंग टू गेट अवॉर्डेड फॉर श्योर एंड ही वाज सिटिंग जस्ट बिसाइड मी. एंड फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि अनाउंसमेंट दैट माय बैच नाजी बशीर एंड मोहिनी गुप्ता एंड आई वाज टोटली शॉक्ड एंड वी बोथ हैड टू go there. So it was all about how much efforts you put. It's not like कि इलेक्ट्रॉनिक्स में है या आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आप जहाँ पे भी जाते हो वहाँ पे आप अपने एफर्ट्स डालो. ट्रेनिंग जो भी हो रही है आपकी वो स्क्रैच से फ्रेशर्स को लेकर के उस तरीके से आपको सिखाते हैं. तो कोई बैगेज मत लो, न्यू लर्निंग न्यू स्टार्ट करो. तो आई गॉट अवॉर्डेड. आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आगे अच्छा जाएगा. और मेरा एक 1.5 साल जो मैं टीसीएस में रही दैट वाज गुड. एंड फॉर्चुनेटली फिर मुझे एक और चांस मिला. मीडियाटेक कॉल्ड मी, दे हैड वैकेंसी. तो वहाँ पे एक बार फिर से इंटरव्यू हुआ एंड आई जॉइन मीडियाटेक लेटर. एंड सिंस देन फिर ये हुआ कि हाँ चलो इलेक्ट्रॉनिक्स कोर के लिए अब काम करने को मिलेगा. सो आई हैव बीन वर्किंग on features like network, LTE, IMS in the recent years. Network related काफी learnings और ये सबसे related है. So this is it. और अभी ऐसे चल रहा है. Let's see how it goes. इससे related कोई questions हो तो yes I can. We will definitely ask you ma'am related questions थोड़ी देर बाद. मेरे ख्याल से कई लोग ऐसे होते हैं जिनका शायद गेट में जाने का नहीं होता है, बट अनफॉर्चुनेटली दे गो विद द फ्लो कि ज्यादातर लोग कर रहे हैं, इस वजह से हम भी करते हैं. तो उनके लिए मेरे ख्याल से इंफॉर्मेटिव रहा हो. और हम मोहिनी मैम से अभी आगे भी इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्पीकर सतीश सर. तो सतीश सर, आपने दोनों फेज देखा. फर्स्ट अटेम्प्ट में मीन्स आपने कुछ गलतियां करी जिसकी वजह से आपको उस लेवल की सक्सेस नहीं मिली शायद. एंड देन यू रेक्टिफाइड दोज मिस्टेक्स और यू सिक्योर्ड अ गुड रैंक. तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि केएनआईटी के दौर में आपका कैसा रहा प्रिपरेशन, और वहां पे कौन सी ऐसी गलतियां थी जिनको आपने आने वाले टाइम में रेक्टिफाई किया? केएनआईटी के टाइम पे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने कुछ नोट्स बना रखे थे. तो उसके लिए क्या था कि प्रिपरेशन मैंने जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट बुक्स होती हैं तो उनसे पढ़ा था. तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है पढ़ने में. तो उसमें मैंने सोचा था कि एनपीटीईएल लेक्चर से पढूं, बट उससे नहीं पढ़ पाया था मैं. तो उसके साथ साथ मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तो उसमें रैंक अच्छी आती थी. बट जब गेट का पेपर दिया था तो उस टाइम थोड़ा सा मैं पेशेंस हो बैठा था. मतलब कि मैं अच्छा क्वेश्चन जो आता हुआ भी था उसको भी गलत कर रहा था. तो इसी वजह थी, यही कारण था कि मतलब उसमें मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया. तो गेट रैंक भी अच्छी नहीं बन पाई. इसी में सर कंटिन्यूड क्वेश्चन था कि जैसे आपने कैसे उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया, और प्रिपरेशन रिलेटेड जैसे कुछ सब्जेक्ट्स पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, कुछ पे कम दिया जाता है, उस पे आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें. एक्चुअली जब गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो मैं तो आईआईटी और पीएसयू को अच्छी रैंक होनी चाहिए, तभी आपको आईआईटी, आईएससी या फिर पीएसयू में एडमिशन, पीएसयू में मतलब जॉब मिल सकती है. और इसीलिए मैंने केएनआईटी के पास आउट होने के बाद कुछ सब्जेक्ट जो मुझे टफ लगते थे तो मैंने उनको स्टार्टिंग से ही अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू किया. और उन सब्जेक्ट्स का मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया. और उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट पढ़ रहा था मैं तो उनका जो टफ सब्जेक्ट थे उनका रिवीजन भी करता रहता था मैं. और उसके साथ मैंने एक डायरी बना रखी थी तो उसमें जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगता था तो मैं उसमें नोट कर लेता था. और वो डायरी आज भी मेरे पास है तो मुझे उससे बहुत हेल्प मिलती है. और मतलब यही कारण रहा था कि मैं और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी तो उसमें कुछ मिस्टेक्स होती थी तो जो कि जनरल मिस्टेक्स सभी करते हैं. बट आप जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो भी मिस्टेक से इम्प्रूव हो जाएंगी आपकी.
और मेरा जब पेपर हुआ था तो मैंने उसमें भी एक मिस्टेक की थी, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुनकर ये नहीं करेंगे। तो कभी कभी होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आंसर पूछा जाता है, यूनिट हम चेंज कर देते हैं। मेरा आंसर 250 मिली वोल्ट आया था और मैंने 0.25 वोल्ट लिख दिया था, तो मेरा वो आंसर गलत हो गया था। इस तरह से यूनिट में मिस्टेक नहीं करनी है। और क्वेश्चन आपको आता हुआ भी है, और अगर आप बहुत जल्दी में चाहते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो मैं इजी कर ही ले जाऊंगा, इस पे टाइम नहीं देगा, तो गेट के पेपर में आपको टाइम सफिशिएंट रहता है। आप पेशेंस से मतलब अच्छे से टाइम दे क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, काफ़ी यूजफुल रहा होगा ये सारे गेट एस्पिरेंट्स के लिए। तो